باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق کے ہم نے 7 لیسن پڑھ لیے ہیں، جہاں تک ہم نے با عین لام تک پڑھ لیا ہے۔ تو آج کا جو مادہ ہے اس میں ہے با غین تا۔ آج کا پہلا لفظ ہے جس کے روٹ ورڈ ہے با غین اور تا۔ البغت والبغتۃ، اس کے معنی ہوتے ہیں یک بارگی، اچانک۔ المباغت، ایک دوسرے کے پاس اچانک پہنچ جانا۔ راغب نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہے کسی چیز کا یک بارگی ایسی جگہ سے نمودار ہو جانا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ راغب، قرآن میں ہے اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، جب ان پر الساعۃ اچانک آ جائے گی۔ الساعۃ کسی طرح اچانک اور یک بارگی آتی ہے۔ کس طرح اچانک اور یک بارگی آتی ہے، اس کے لیے سین واو عین کا عنوان دیکھیے۔ اسی صورت میں ذرا آگے چل کر ہے ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، تم پر خدا کا عذاب اچانک آ جائے یا اس طرح کہ پہلے اس کی علامت ظاہر طور پر تمہارے سامنے آئیں اور اس کے بعد عذاب آئے۔ اس سے واضح ہے کہ بغتتاً اس انداز کو کہیں گے جس میں کوئی واقع تدریجی یا ارتقائی طور پر بائی ایولیوشن نمودار نہ ہو، بلکہ انقلابی طور پر بائی ریولیوشن یا دور حاضر کی تحقیق کے مطابق فجائی ارتقاء کے طریق سے بائی ایمرجنٹ ایولیوشن واقع ہو۔ اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر عمل کا نتیجہ تو اسی وقت مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ محسوس شکل میں ہمارے سامنے کچھ وقت کے بعد آتا ہے۔ چنانچہ سورۃ انبیاء میں ہے فلما احسوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا۔ احسوا محسوس کیا، بأسنا عذاب کو، یعنی وہ عذاب غیر محسوس شکل میں تو پہلے سے مرتب ہو رہا تھا، لیکن ان کے سامنے محسوس شکل میں بعد میں آیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام 44۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون۔ فلما، پھر جب نسوا وہ بھول گئے، ما ذکروا جو نصیحت کی گئی، بھی اس کے ساتھ، فتحنا تو ہم نے کھول دیے، فتح مینس کھولنا، فتحنا تو ہم نے کھول دی علیہم ان پر ابواب دروازے، کل شیء ہر چیز کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فرحوا خوش ہو گئے، بما اس سے جو اوتوا انہیں دی گئی، اخذناہم ہم نے پکڑا ان کو، بغتۃ اچانک، فاذا پس اس وقت ہم وہ مبلسون مایوس رہ گئے۔ تو جو لفظ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے بغتۃ، اس کا معنی ہوتا ہے اچانک۔ نیکسٹ مادہ ہے با غین داد، البغض۔ یہ لفظ الحب یعنی محبت کی ضد ہے، یعنی کسی چیز سے دل کا متنفر اور بیزار ہونا۔ البغضاء شدت بغض کو کہتے ہیں۔ تاج و راغب و محیط، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 91۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ انما اس کے سوا نہیں، یرید چاہتا ہے، الشیطان شیطان، ان یوقع کہ ڈالے وہ، بینکم تمہارے درمیان، العداوۃ دشمنی،
वल बगदा और बैर, अदावत बोलते हैं दुश्मनी को, और बुगद बैर, यानी ये दोनों हममानी लफ्ज़ हैं, इनका मानी सिमिलर है। फी में या से, अल खमरी शराब में से, वल मैसिरी और जुआ, खमर बोलते हैं शराब को और मैसिर बोलते हैं जुए को। वयसुद्दकुम, और तुम्हें रोके, अन से जिक्रिल्लाही, अल्लाह की याद, यानी अल्लाह की याद से वो तुम्हें रोके, व और अनिस सलाती, नमाज से, फहल पस है, यानी किसी चीज से दिल का मुतनफिर और बेजार होना। अल बगदाउ, शिद्दत बुग़्द को कहते हैं। ताज और रागिब व मुहीत, फिल खमरी वल मैसिरी वयसुद्दकुम अन जिक्रिल्लाहि व अनिस सलाती फहल अंतुम मुंतहून। इन्नमा, इसके सिवा नहीं, इनका मानी सिमिलर है। फी में या से, अल खमरी शराब में से, वल मैसिरी और जुआ, खमर बोलते हैं शराब को और मैसिर बोलते हैं जुए को। वयसुद्दकुम, और तुम्हें रोके, अन से जिक्रिल्लाही, अल्लाह की याद, यानी अल्लाह की याद से वो तुम्हें रोके, व और अनिस सलाती, नमाज से, फहल पस क्या, अंतुम तुम, मुंतहून बाज आओगे। दर हकीकत शैतान चाहता है कि वो शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे, और वो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से रोक दे, तो क्या तुम बाज आने वाले हो? नेक्स्ट मादा है बा गैन लाम, अल बगलू, इसके माने होते हैं खच्चर, खच्चर को बोलते हैं बगलू। ताज रागिब व मुहीत, जमा, इसका जमा है बिगालुन। इब्न फारिस ने कहा कि इसके बुनियादी मानी जिस्मानी कुव्वत के हैं। खच्चर को अल बगलू इसकी मजबूती की वजह से कहते हैं। अत्तबगीलु, जिस्म का मोटा और सख्त होना। ताज रागिब व मुहीत, चूँकि खच्चर घोड़ी और गधे के इख्तलात से वजूद में आता है, इसलिए हर इस जानवर को भी बगलुन कहते हैं जो दो मुख्तलिफ जिन्सों के मलाप से पैदा हो। नेक्स्ट मादा है बा गैन या, अल बगयू, इसके मानी हैं दरमियाना रवि की हद से बढ़ जाने की ख्वाहिश, ख्वाह हद से तजावज़ कर सके या ना कर सके। अलबगयू, बहुत ज़्यादा बारिश को कहते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश को कहते हैं जो हद से बढ़ जाए। बगतिस समाउ, बादल अपनी हद से बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बरसा। ये इस लफ्ज़ के बुनियादी मानी है। इब्न फारिस ने कहा है कि इसके मानी नंबर 1 किसी चीज़ को तलब करना और नंबर 2 बिगड़ जाना है। फ़ियतु बागियतुन, इस जमात को कहते हैं जो हदूद शिकनी करे और निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हो। फ़ियतुन बोलते हैं जमात को। फ़ियतुन बागियतुन, इस जमात को कहते हैं जो हदूद शिकनी करे और निज़ाम खिलाफत से उठ खड़ी हो, यानी बागी हो जाए। और अल बगाया, इन हर अव्वल दस्तों को कहते हैं जो लश्कर के पहुंचने से पहले इंतज़ामात करने के लिए चलते हैं। बगा या बगी, माजी और मुजारे, इसके मानी है इसने तकब्बर किया और अपनी हद से बढ़ गया। तबागऊ, एक दूसरे पर ज़्यादती करना। ये बाब तफ़ाइल से है। तबागऊ, एक दूसरे, जिसके मानी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के आते हैं। जब बाब तफ़ाइल से आता है जिसमें एक से ज़्यादा फ़ाइल होते हैं। एक दूसरे पर ज़्यादती करना। बगतिल मरअतु बगाअन, बगतिल मरअतु बिगाअन, औरत अपनी हदूद इफ़्फ़त से बढ़ गई।
बगीयुन और बगुवन जिनाकार औरत को कहते हैं। बगा अलैहि किसी पर ज़्यादती करना, जुल्म करना, दस्त दराजी करना, नीज़ हसद करना कि वो मुझसे आगे क्यों बढ़ गया। ताज इब्तिगाउन किसी चीज़ के हासिल करने में बहुत ज़्यादा कोशिश करना। अगर अच्छी चीज़ की तलब हो तो ये कोशिश भी महदूद हो जाती है वरना मज़मूम। ताज अलबिगियतु और अलबगियतु इस मतलूब चीज़ को कहते हैं जिसके हसूल की इस तरह कोशिश की जाए। इस गम गुश्ता चीज़ को भी कहते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तलाश की जाए। अलबागी तलाश करने वाले को भी कहते हैं। जैसा कि सूरा यासीन में है, वमा अल्लमनाहु शिर वमा यंबगी लहू, हमने रसूल को शायरी नहीं सिखाई और ना ही एक दाई इनकलाब की नफसियाती कैफियत ऐसी हो सकती है कि इस पर हकाइक के मुकाबला में जज्बात गालिब हों। नेक्स्ट मादा है बा काफरा बकरुन के मानी है किसी चीज़ को चीरना फाड़ना, जैसे किसी जानवर का पेट चाक करना। इसलिए बकर अल इल्मा के मानी है इल्म की गहरी तहकीक व तजस्सुस करना। बाकिरुन के मानी शेर के भी होते हैं और इल्मी मुहक्कक के भी। ताजुलीन बकरुन गाय और बैल दोनों को कहते हैं। ताजुलीन ये जमा है, इसका वहद बकरतुन है। किस्सा बनी इसराइल में ये लफ्ज़ सूरा अल-बकर की आयत नंबर 67 में आया है। माबाद आयात में जो कुछ मज़कूर है इससे मुतरशिक होता है कि इससे मतलब सांड था जिससे काम नहीं लिया जाता बल्कि देवताओं के नाम पर वैसे ही छोड़ दिया जाता है। मिस्र में सांड की परस्तिश होती थी और भी जज्बा था। मिस्र में सांड की परस्तिश होती थी और भी जज्बा था जो बनी इसराइल के दिलों की गहराई में शऊरी या गैर शऊरी तौर पर जागुज़ी हो चुका था। इसी जज्बा अकीदत को दूर करने के लिए ज़िबह बकर का हुक्म दिया गया था। नेक्स्ट मादा है बा काफ आइन अलबाकाऊ चतकबरा कौवा या कुत्ता। इसके बुनियादी मानी रंगों का मुख्तलिफ होना है। इब्न फारस अलबाकियातु एक परिंदा जो बहुत होशियार और चौकन्ना होता है और हर वक्त इधर उधर देखता रहता है कि कोई शिकारी इसकी घात में तो नहीं। वो पानी पीने के लिए भी दूसरे परिंदों की रविश से हट कर किसी नामानूस जगह पर आता है। ताजुलीन पहले मानों के लिहाज से अर्दुन बाकियातुन इस ज़मीन को कहते हैं जिसमें कहीं घास और सब्ज़ा हो और कहीं खुश्की, यानी चतकबरी ज़मीन। अलबुकातु ज़मीन का ऐसा कता जो अपने आसपास की ज़मीनों से अलग हो। ज़मीन का ऐसा कता यानी ज़मीन का ऐसा टुकड़ा। कुरान करीम में है फिल बुकातिल मुबारकति मिनश शजरती, दरख्त वाले मुबारक कता ज़मीन में जो बाकी ज़मीनों से अलग था। वैसे अलबकातु ऐसी जगह को भी कहते हैं जहाँ पानी जमा हो गया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरा अल-कसस की आयत नंबर 30। फलम्मा आताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमनी फिल बुकअतिल मुबारकति मिनश शजरति अन या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। फलम्मा फिर जब आताहा वो आया इसके पास, नूदिया नदा दी गई, मिन शाती किनारा से, अलवादिल अयमनी मैदान वादियाँ, मुबारकती बरकत वाली, मिनश शजरती एक दरख्त से, अन के या मूसा ए मूसा इन्नी अना बेशक में अल्लाह हूँ, रब्बुल आलमीन जहानों का परवरदिगार। बुक आती तो बुकत बस ज़मीन का कोई भी टुकड़ा उसे बुकअत बोलते हैं।
फिल बुकाती जगह में यानी ज़मीन के किसी एक टुकड़े में। नेक्स्ट मादा है बा काफ लाम। बकल शय्यु चीज़ ज़ाहिर हो गई। बकलतिल अर्दु ज़मीन पर सब्जियां नमूदार हो गईं। रागिब ने कहा है कि बकलुन इन सब्जियों को कहते हैं जिनकी जड़ें और शाखें सर्दियों में बाकी नहीं रहती। ताजो मुहीत इब्न फारिस ने कहा है कि इसके बुनियादी मानी रोइदगी के हैं। अबू ज़ियाद ने कहा है कि जो कुछ ज़मीन से पहल निकले उसे बकलुन कहते हैं। अकरबुल मवारिद में है कि बकलुन ऐसी सब्ज़ी को कहते हैं जो आलू, गाजर, शलजम की तरह ज़मीन के अंदर पैदा ना होती हो, बल्कि मेथी, पालक, गोभी, टमाटर वगैरह की तरह ज़मीन के ऊपर पैदा होती हो। कुरान करीम में लफ्ज़ सब्ज़ी तरकारी के मानों में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 61 में आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 61, इसका वही छोटा टुकड़ा हम पढ़ते हैं। बकलिहा तरकारी यानी सब्जियाँ। व किस्साइहा काफ सा इसका मदा है काफ सा। व किस्साइहा और ककड़ी, किस्सा बोलते हैं ककड़ी को। व फोमिहा और गंदम यानी कनक को फोम, इसका मदा है फा व मीम। व फोमिहा और गंदम। व अदसिहा और मसूर, तो आइन दाल सीन, अदस बोलते हैं मसूर यानी मसूर की दाल को। व बसलिहा और प्याज। यहाँ पर ये कितनी चीज़ों का जिक्र हुआ है? 1 2 3 4 और 5। बकलिहा तरकारी, व किस्साइहा और ककड़ी यानी इसकी ककड़ी। व फोमिहा और गंदम यानी इसका गंदम यानी ज़मीन का। व अदसिहा और इसके मसूर। व बसलिहा और इसका प्याज वगैरह। नेक्स्ट मादा है बा काफ या। बाकी यू या बकायन किसी चीज़ का अपनी हालत पर कायम रहना, तगैर पजीर न होना, या ये फ़ना उनकी ज़िद है जिसके मानी तगैर पजीर हो जाना है। इब्काउन इस्तिब्काउन बाकी रखना। ताजो मुहीत नीज़ इसके मानी हफाजत और निगहबानी के भी आते हैं। ताजो मुहीत कायनात में हर शय तगैर पजीर है, लेकिन ज़ात खुदावंदी तगैरात से बुलंद है। इसी तरह इसका कानून भी तगैर पजीर नहीं होता। यही मुस्तकिल इक़दार हैं जो आमाल उसके कानून के मुताबिक सरजद हों, इनके नताइज भी गैर मुतबद्दिल समरात के हामिल होते हैं। इससे इंसानी ज़ात में भी ऐसा इस्तेहकाम पैदा हो जाता है कि वो तगैरात से बुलंद हो जाता है। ज़ात पर्सनैलिटी की बुनियादी खसूसियत ये है कि वो तगैरात की दुनिया में गैर मुतगैर रहती है। चेंजलेसनेस इन चेंज। तफसील के लिए देखिए मेरी किताब निज़ाम रबूबियत, नीज़ मन वीज़दा और मारफुल कुरान की 5वीं जिल्द, जिसका अनवान है इंसान ने क्या सोचा। सूरतुन नहल में है मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। मा जो, इंदकुम तुम्हारे पास है, यनफदु फना होने वाला है, वमा इंदल्लाहि और जो कुछ अल्लाह के पास है, बाकिन बाकी रहने वाला है। जो कुछ तुम्हारे पास तुम्हारे अपने तसव्वुरात के मुताबिक होता है वो जाता रहता है, लेकिन जो कुछ कानून खुदावंदी के मुताबिक हासिल होता है, ख्वा वो ज़ीस्त की ख्वाहिश खुशगवारियाँ हों और ख्वा इंसानी ज़ात की नशो नमा, वो तगैर ना आशना होता है। सूरतुल कहफ में है अलमाल वल बनून ज़ीनतल हयाती दुनिया, दौलत औलाद ये इंसान की करीबी तभी ज़िंदगी की ज़ीस्त की चीज़ें हैं, लेकिन वलबाकियातुस्सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। खुदा के कानून रबूबियत की रूह से बेहतरीन आमाल हैं। आमाल वो हैं जिनकी सलाहियत बख्शिश नताइज तगैर पजीर नहीं होते। इन्हीं की उम्मीद रखना बेहतरीन नस्बुल आइन हयात है। नेक्स्ट मादा है बा काफ रा, यहाँ पे छोटा काफ है। अलबिक्रू जमा अबकारुन,
ये अलबिक्रू है और इसकी जमा है अबकारुन। इसके माने होते हैं कंवारी औरत, नीज़ वो मर्द जो अब तक किसी औरत के पास ना गया हो, पहला बच्चा देने वाली औरत या ऊँटनी। पहला बच्चा हर पहली चीज़। इब्न फारस ने कहा है कि यही इसके बुनियादी मानी हैं। गाय जो अभी हामला न हुई हो या जवान हो। ला फारिदुम वला बिक्रुन, ना बूढ़ी है ना नौजवान। अलबुकरतु सुबह, दिन का पहला और इब्तदाई हिस्सा। साहिब मुहित ने लिखा है कि अल इबकारू तलुए फजर से चाश्त के वक़्त तक की मुद्दत को कहते हैं। नीज़ इसके नज़दीक बकरुन के मादा के असली मानी शक करने या कतः करने के हैं। ऐसी चीज़ों को भी जिनके पहले नज़ीर न हो अबकारुन कहते हैं। फामूस, ये कामूस है असल में लिखा हुआ। मैं ये लफ्ज़ इन्हीं मानी में इस्तेमाल हुआ है, यानी सही तालीम व तरबियत और आमाल साले से इनमें ऐसी तब्दीली हुई कि वो ऐसी मखलूक बन गई जिसकी पहले नज़ीर न थी। वो अहद जाहलिया की औरतों से यकसर मुख्तलिफ हो गईं। नेक्स्ट मादा है बा काफ काफ, मक्का मुअज़्ज़मा। देखिए अनवान मीम काफ काफ और बा काफ काफ। मीम काफ काफ मक्कल अज़्मा, इसने हड्डी को इस तरह चूस लिया कि इसका गोदा सब साफ कर दिया। मक्कल आज़म बोलते हैं हड्डी को। ताज रागिब, इब्न फारस ने इसके बुनियादी मानी यही लिखे हैं। मक्कल फसीलु माफ़ी दरई उम्मिही, ऊँटनी के बच्चे ने वो तमाम दूध चूस लिया जो इसकी माँ के थन में था। मक्काहू, इसने उसे हलाक कर दिया, कम कर दिया। ताज रागिब, मक्कातु, याकूब ने कहा है कि मक्कातु पूरे हरम को कहते हैं और बक्कातु शहर मक्का को कहते हैं। मक्कातु की वजह तस्मिया में इख्तलाफ है। मसलन इसे इसलिए मक्कातु कहते हैं कि वो गुनाहों को कम कर देता है या फना कर देता है। चूँकि इस शहर में पानी बहुत कम था, इसलिए यहाँ के बाशिंदे यहाँ का पानी गोया चूस डालते थे या सब का सब निकाल लेते थे। मक्कुन के मानी जज़ब करने और खींचने के भी आते हैं। ये शहर चूँकि लोगों को अपनी तरफ खींचता और जज़ब करता है, इसलिए उसे मक्कातु कहते हैं। बक्कुन की तरह मक्कुन भी इदहाम को कहते हैं और चूँकि इस शहर में लोगों का हजूम होता है, इसलिए उसे मक्कातु या बक्कातु कहते हैं। मुकाकुन और मुकाकतुन हड्डी से निकाले हुए मगज़ और गोदे को कहते हैं। ताज और रागिब, जो हड्डी के वस्त में होता है, चूँकि ये शहर दुनिया के शहरों का मगज़ है, इसलिए उसे मक्कातु कहते हैं। कुरान करीम में मक्कातु इस शहर के लिए आया है जिसमें मस्जिदुल हराम है। सूरह नंबर 48 की आयत नंबर 24 में इसी को मक्कातु भी कहा गया है, इसी को भी बक्कातु भी कहा गया है। सूरह नंबर आल इमरान की आयत नंबर 96। देखिए अनवान बा काफ काफ, बा काफ काफ बक्काहू या बुक्कु बक्कन, किसी चीज़ को फाड़ देना, मुतफर्रिक कर देना, किसी पर हजूम करना, मज़ाहमत करना। बक्काउनुकहू, इसने इसकी गर्दन तोड़ दी। मगर मक्का का नाम बक्कातु भी है। कुरान करीम में है, इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लिल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन, यकीनन पहला घर जो नो इंसान के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्का में है, बाबरकत। इस नाम की वजह से तस्मिया के मुताल्लिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं।